Hello everyone, welcome to Tarun IS. This is your host and host Shivam Shukla. So I am back with our new video in the series Daily Current Affairs MCQs. Today we will practice the questions of which are related to the 7th July 2023. Let's see the questions. First question is, it is related to gravitational waves. Let's try to solve this question. Which of the following statements are correct? We have to find out which statements are correct in this following set of statements. First is, gravitational waves were first directly observed in 2016. First factual statement. Second, India's giant meter wave radio telescope played a role in the recent discovery of gravitational waves. Second statement, again a factual. Third is, gravitational waves can be detected using electromagnetic radiation. Conceptual. So if you have read about the gravitational waves and how is it different from electromagnetic waves, you must be able to answer this question. First statement is indeed correct. Second statement is also correct. Third is not correct. Okay, so the answer for this question would be option A. Let's see the description part. You will be more familiar then. So the correct answer is C, that is A, that is statement 1 and 2. Why the particular statement third is wrong? It is wrong because gravitational waves cannot be detected using electromagnetic radiation, as they required specialized instruments like laser interferometer gravitational wave observatory LIGO. Specifically इसी phenomenon के लिए बनाया गया था. This was a legendary landmark in the field of astronomy कि पहली बार मतलब आइंस्टीन जब अपनी थ्योरी देकर गए थे तो he predicted about the existence of the gravitational waves, but for the first time physically it was detected in 2016, and it has opened plethora of opportunities to research in this particular field, and this was the particular detector which was used, LIGO, the laser interferometer gravitational wave observatory. इसने किया क्या था? It measures the difference between length, measures the difference in length to one part, then 10 to the power 21 times के scale तक इसने measure किया था. It is equivalent to measuring the distance from the nearest star to the width of a human hair. ठीक है, एक मतलब इतना रेंज था उसका कि 10 to the power 21 से लेके आप 10 to the power -18 तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो. यानी आप एक ह्यूमन हेयर की विड्थ को भी मेजर कर सकते हो, साथ साथ में नियरेस्ट स्टार की डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हो. ठीक है, एज अ वेव ये जो पूरा प्रिंसिपल है इसका, इसके लिए आप डेडिकेटेड वीडियोस देख सकते हो. ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement are correct? And this statement is regarding Chandrayaan 3. ठीक है, Chandrayaan 1, 2 के बाद थर्ड आया है sequel. Chandrayaan 3 is integrated with the launch vehicle Mark 3 LMV3 for its upcoming mission. Simple सा factual statement. Second, Chandrayaan 3 aims to demonstrate end-to-end capability in safe landing and roving on the lunar surface. Both the statements are correct. इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया है आपके लिए. इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें थ्रू दिस इसीलिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया आइडेंटिफाई करके कि इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा. बट आज एक ही न्यूज़ आइटम आया, अगले कुछ 7-8 दिनों में इस पर सीरीज ऑफ आर्टिकल्स आएंगे. प्लीज़ फॉलो देम. ठीक है, सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज बोथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट. तो हु डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल? इसरो, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसके बाद इन्होंने एंड टू एंड कैपेबिलिटी दी है सेफ लैंडिंग में, रोविंग में एंड ऑन द लूनर सरफेस विद द इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग एंड रोविंग? लैंडिंग मतलब आप आसमान से उड़ के यू आर लैंडिंग ऑन अर्थ स्लोली. ठीक है, इस तरह से लैंड कर रहे हो कि डैमेज ना हो पूरे सरफेस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको. तो सेफली कैसे कैसे उतरना है जिससे एकदम से जर्क की वजह से नुकसान ना हो जाए. एंड सेकेंड मॉड्यूल इज प्रोपल्जन मॉड्यूल. कैसे आप यहाँ से टेक ऑफ करोगे, कैसे इस प्लैनेट से टेक ऑफ करके आप दूसरे वाले सैटेलाइट पे उतरोगे. एंड थर्ड इज रोवर.
Third is rovering. Rovering means after landing on the surface of the moon, what will be your activities? How will you operate? How will you take the sample? All those things. तो rover. तीन aspect इसमें थे, तीन components थे. Next question देख लेते हैं. Which of the following statements are correct? And this question is regarding Shanghai Cooperation Organization, SCO. It was initially formed by the Shanghai 5 countries, which included Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. ठीक है, Shanghai 5 इसके फॉर्मेशन में फाउंडिंग मेंबर थे ये 5. ठीक है, तो ये बताना है कि ये ही पांचों थे. आर ऑल countries correct? Next statement, it aims to promote regional security, reduce border troops and combat terrorism. ठीक है, इन तीनों ऑब्जेक्टिव के साथ ये काम करता है, ये भी आपको बताना है. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? नेक्स्ट इज इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम ऑब्जर्वर्स ऑफ द एससीओ इन 2005. 2005 में ऑब्जर्वर्स बने और फुल टाइम मेंबर्स बन गए इन 2017. इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? नेक्स्ट इज ईरान ज्वाइंड एज द एससीओ एज अ फुल मेंबर इन 2023, यानी इसी साल. इज इट करेक्ट? ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट जो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, ऑल 5 शंघाई 5 कंट्रीज इंक्लूडेड रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान. ठीक है, एंड सेकंड उनका फोकस सेम ही है. ईरान हैज रिसेंटली ज्वाइंड द एससीओ. 2 दिन पहले की न्यूज़ है. अभी जो लेटेस्ट समिट हुआ उसमें ईरान ने ज्वाइन किया है फुल टाइम मेंबर के तौर पे. एंड दिस इज द मैप ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. मैप अभी करंट मेंबर्स में कौन कौन है? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड देन ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी ऑल द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया अलॉन्ग विद रशिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान. ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एज वेल एज सेंट्रल एशिया अलॉन्ग विद रशिया एंड चाइना, ऑल बिग कंट्रीज. नॉट बांग्लादेश नहीं है इसमें. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बांग्लादेश नहीं है, इसके अलावा म्यांमार नहीं है, नेपाल भी नहीं है, भूटान भी नहीं है. छोटे छोटे कंट्रीज नहीं है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है. अफगानिस्तान है क्या? अफगानिस्तान इज एन ऑब्जर्वर स्टेट. बेलारूस इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वर स्टेट. ईरान अभी तक ऑब्जर्वर था, अब मेंबर में आ गया है. नेक्स्ट इज मंगोलिया, भी इज एन ऑब्जर्वर स्टेट. हु आर द डायलॉग पार्टनर्स? डायलॉग पार्टनर्स में है आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की. दीज आर नॉट द मेंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट आर गेस्ट अटेंडीज, जो गेस्ट हर बार आते हैं, अटेंड करते हैं. तुर्कमेनिस्तान, CIS, UN एंड आसियान. कीप इन माइंड, सेंट्रल एशिया में से पूरा सेंट्रल एशिया इसका मेंबर नहीं है. तुर्कमेनिस्तान इज स्टिल अ गेस्ट अटेंडी. इसका मेंबर अभी SCO का मेंबर तुर्कमेनिस्तान नहीं बना है. तो अगर एक स्टेटमेंट आता है कि पूरा सेंट्रल एशिया है क्या, इसका मेंबर नहीं है. ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इज स्टिल नॉट देयर. पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर. नेक्स्ट इज सिंपल क्वेश्चन. ये लोकेशन आपने सुनी होगी, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. ठीक है, अगर आपने इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी हो तो जैसे शर्नोबिल का डिजास्टर था जिसपे नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज भी आई है, उसी जैसा डिजास्टर होने का दावा किया है एक कंट्री. लक्समबर्ग ने इस पे एक रिपोर्ट अभी पेश की है. तो दिस पर्टिकुलर रीजन ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑफन सीन इन न्यूज़ कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन. इफ यू आर रीडिंग द फॉलोइंग द करंट अफेयर्स रेगुलरली, देन this is Ukraine. Answer is Ukraine only. You can see the map. Here is the information. ठीक है, तो it is a plant located in the southwest of the city. ठीक है, southwest ये रहा southwest of the city. ठीक है, and what is the name of the city? Zaporizhzhia and Dnieper river in Ukraine. ठीक है, it was taken over by the Russian forces in May 2022. ठीक है, ये है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, क्रीमिया के पास ही है, रशिया के डोमिनेटेड रीजन में आता है. करंटली हेल्ड बाय रशिया, मतलब वहाँ पे रशिया वॉर कर रहा है. एंड हैज सिंस हैड टू ऑपरेट इन कंडीशन दैट थ्रेटन सेफ्टी, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे खतरा है अभी. इन जून लिथुआनिया बेस्ड NGO नेम्ड
Bellona Foundation published a report analyzing the risk associated with the hostilities around the Zaporizhzhia and based on the facility design, safety measures and the local geography. उनके बेसिस पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है and they are saying कि it is under threat. So that's why this particular power plant is in news. Next is which of the following is correct? Is incorrect. यहाँ पे आपको बताना है incorrect with respect to the wildlife protection in India. What is the current system? ठीक है, इसमें 4 facts हैं, इसमें से आपको बताना है which of the following is incorrect. चिंकारा और इंडियन गैज़ल is the state animal of गुजरात. नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ये आर्टिकल 51A है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, ठीक है, तो इसको आप गलत मान के नहीं चलेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51AG of the constitution, it is a fundamental duty of citizens to protect wildlife and show compassion towards all living creatures. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ये आप इसको 51A मान के पढ़ना, बाकी इज योर चांस कि भाई 51AG में आता है या ABCDEFGH कुछ कौन सा है, ठीक है. तो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये पक्का है, ठीक है, बट कौन से वाले में आता है, G इज दिस करेक्ट, ठीक है, यू विल हैव टू टेल. Next statement, Wildlife Protection Act declares the hunting of scheduled species of wild elements as a serious offence. Looks good, so this cannot be wrong. Next is section 55C of the Wildlife Protection Act empowers the court to take cognizance of an offence on the complaint of a private person. ठीक है, अगर कोई private person complaint करता है तो as per the Wildlife Protection Act court can take the cognizance of an offence. ठीक है. So what should be wrong in this? Here is this simple information is wrong. ठीक है. चिंकारा, आप अगर आपने इसके बारे में सुना हो, this was in news because of सलमान खान इशू also. ठीक है. तो अगर आपको सलमान खान वाले इशू का सही से पता है तो you must be knowing it is based in राजस्थान. So the चिंकारा is the state animal of राजस्थान. ठीक है. और जितनी उस पर कंट्रोवर्सी हुई है and the work of the Bisnois in the conservation of wildlife in Chinkaras of, तो ये काफ़ी फेमस रहा है, ठीक है. So let's see the description part. So the answer which is incorrect is option A only. That's why राजस्थान इसमें है, बाकी सारा सही है. Let's see the scientific classification. अगर आपने सुना है scientific classification of animals, तो सबसे पहले इसका किंगडम हो गया एनिमेलिया, फाइलम हो गया कोर्डाटा, नेक्स्ट जो क्लास हो गई वो मैमेलिया, ऑर्डर हो गया आर्टियो काइटला, नेक्स्ट फैमिली हो गई बोविडे एंड जीनस हो गया गजेला एंड स्पीशीज हो गई बेनेटी फॉर दिस पर्टिकुलर चिंकारा. नेक्स्ट इज यहाँ पे उसका IUCN स्टेटस मैं बता रहा हूँ एंड दिस इज लीस्ट कंसर्न फॉर नाउ, ठीक है, बट इट लाइज इन द शेड्यूल्ड स्पीशीज, ठीक है, ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो इसके और स्टेट एनिमल भी है तो इसका हंटिंग पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं. दिस इज ऑल फॉर द डे. होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स. Please leave your feedback in the comment section and also keep following our initiatives. We are providing you with 3 other initiatives other than this. One is daily editorial analysis, second is daily trending topic of the day, third is top 75 issues in news which is more important towards the mains perspective, okay. But you will be getting so much of the prelims information also, and you can directly make notes from them, and all the PDFs of these particular initiatives will be is available on our Telegram channel, which you can follow. That is Telegram Tarun_IAS on Telegram channel. Thank you and have a nice day.